landmark, and it was very much required for a developing country like India. But unfortunately, we have to wait for around 40 years or 45, 46 years for another aims to come. After Vajpayee ji became Prime Minister, 6 new aims were included. When Dr. Manmohan Singh ji was Prime Minister, then 2 new aims were included. And when Shri Narendra Modi ji became Prime Minister, now there are 14 aims which has been included. But the most significant is, if we could have been able to establish All India Institute of Ayurvedic Sciences even in early 50s, and by this time we would have documented, we have clinically analyzed and got it, I will not say scientific, got it in the contemporary context, because what is science and what is not science is a concept which is governed by your civilization or by your religious belief, which will look a little bit awkward to you, but I will explain a little bit later. So I think in 70 years we could have become a world leader. AIIMS has done a wonderful thing. The doctors have done a very, you can say, glorious achievements. But after all, if you want to become the world leader, then you have to create an alternative technology. You have to change the paradigm of the knowledge. Because by following the established paradigm, you can become a big country, you can become a prosperous country, you can become a powerful country, but you cannot become a world leader. For example, you take today, the most powerful country is considered America. How it became most powerful? Before Second World War, the entire power center of the world was in Europe. Because to become the powerful country, the country should have mechanized infantry, maximum fighter planes, Patton tanks, artilleries. These were considered your assets to become the powerful country. Suddenly, US invented atom bomb. And the entire paradigm shifted. Your thousands of tanks are useless in front of one atom bomb. So the paradigm of the technology shifted, the paradigm of the power shifted. So if we want to become the world leader, we have to think about the alternative paradigm. And from our traditions, we are having a very rich knowledge base of the alternative paradigm, which was initiated when Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office. You remember the first major work which he has undertook at the international level to get the recognition of the International Yoga Day. And more than 170 countries have not only become supporter of the proposal, they have become the second proposer of the proposal. And it is in the entire history of United Nations, no proposal has got more than 170 second proposals. And that was including more than 40 Muslim countries. And you have seen last year, 135 countries representative were there doing yoga on the last yoga day in June in front of United Nations when Prime Minister Modi ji was doing there. What was this yoga? It was nothing but, you can say, a totally different paradigm of curative and preventive process. When we talk about medication, it starts with a definition that if it is asked which person can be considered healthy, then the definition is if he or she is having no disease, then he or she can be considered healthy. It means the definition of health is related to disease. On the contrary, if in Indian tradition, if you ask who can be considered healthy, so the Sanskrit and Hindi and in most of the Indian languages, the word is swasth. Swasth means swa-ist. It's all faculties, all energies are settled in itself with all its balance. So there is a difference between rogi or nirogi hona or swasth hona. Because if you are called nirogi, there is no disease, it means your thinking is just up to the level of your physical fitness. When you say swasth,
It means nothing but the fundamental base of your conscious elevation, for which your physical fitness is just a prerequisite. That's why if you look at the yoga, ये अष्टांग योग में, this is just one part. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि. It is just a very elementary level, like A for apple. It is just to synchronize the energy of your body so that it remains in a proper balance, and then you can start the elevation of your pranic energy and the conscious energy to an upper level, which can ultimately lead to samadhi, because the last of the Ashtangic yoga is dharan dhyan samadhi. But what happens when I said that there is considered to be a contradiction in the medication and meditation? It is because of certain scientific dogmas. You will think that what I am talking about, देखिए धार्मिक अंधविश्वास नुकसान देते हैं, साइंटिफिक अंधविश्वास भी बहुत नुकसान देते हैं. 3-4 साइंटिफिक अंधविश्वास हैं. There is a scientific dogmas on which the entire premise of science is standing. Number one, everything is universe is dead, there is no real role of consciousness. It is presumed without any experimental proving. Second, whatever is the movement in the universe is not in any design, it's hazard, random. Third, if there is anything conscious which is perceivable here in ourselves, is nothing but a result of chemical reactions. Acharya Vikramaditya. It is nothing but the chemical reactions in our cellular microbiological organism. अब ये 3 साइंटिफिक अंधविश्वास के ऊपर पूरी साइंस टिकी हुई है. वो प्रिज्यूम करके चलिए, आप ये मान लीजिए. अगर आपने नहीं माना तो बस फिर तो आपको एंटी साइंटिफिक एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. समटाइम्स साइंस सेज यू शो मी वन मिरेकल and then we will be accepting your logic. If I ask you that the science says that the Big Bang started with the very small point of infinite density, infinite mass, infinite temperature, infinite energy and zero volume, from where it has come? No, just presume, and then comes to Big Bang. It itself is a miracle. By your logic is a miracle. So, what happens? And fourth thing is, we are a separate entity. We are not part of this entire universe or ecosystem. Why it has started? Because I have said that scientific belief is governed by your cultural civilizational belief. Because if you look, Aristotle has written a book, Nature, in which it has said that all the elements of nature are for the service of the mankind. Man should become possessors and masters of nature. It means from the point of inception, you are considering yourself different than the nature. Then Francis Bacon and René Descartes says in Western theology that entire nature will be in wilderness if the man is not there. Then they go one step ahead, that man should be able to subdue nature. You know, the subdue is an English word which means to suppress. But some of the people might be knowing, or most of the people will not be knowing, it's not originally an English word. It is a Hebrew word, which physical meaning is bhale ki nok se dabana. It's not to suppress. Bhale ki nok se dabana. It's a very strong military connotation with a very ruthless suppression. The subdue is a word. So, then how it got connected with the scientific development? Today, Chandrayaan is approaching to have a soft landing on moon, and we hope and pray that it will become successful around 6 p.m. today. But if you remember, when the first man went into space, though this event in April 1961, this event is much before when we were born, but we have read in the books when Yuri Gagarin entered into space in April 1961,
61, what is written in the books? Man has conquered space, as if space is an enemy needed to be conquered. It has come from the theological thinking of what Aristotle wrote in Nature. I am not going in the religious books, though it is there, very much there in the religious books also, but I am not touching the religious books aspect. I am just saying the philosophical aspect. Whether it is Francis Bacon, René Descartes, all says, and from there the concept. During our childhood we were asked to write a letter. क्या मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है? समुद्र के ऊपर ब्रिज बना दिए हैं, पहाड़ काट के सड़कें बना दिए हैं, जंगल काट के शहर बना दिए हैं, नदियों पे डैम बना दिए हैं, कितना बड़ा चेंज कर लिया है. But look, there is a fundamental difference, and what is the reality? In our culture, our concept, we considered Matah Bhumi Putro Ham Prithivya. It is written in the Vedas that this earth and this nature is like our mother and we are like its son. और माता से पोषण लिया जा सकता है, शोषण की नहीं सोची जा सकती है. जब आप नेचर को सोचते हैं तो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन सोचते हैं. व्हेन यू कंसीडर नेचर एज मदर, यू कैन नॉट एवर थिंक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और अब आप देखिए कि आप सोचेंगे मैंने बड़ा डेवलपमेंट किया. सिंस वी आर हियर इन द वेरी अगस्ट गैदरिंग ऑफ द highest institution of medical science, if you look the development of medical science in the last 1 century, last 20th century, which is considered to be the glorious century of scientific development. And if you divide, it's into 4 parts of 25 years. From 1900 to 1925, there was a major breakthrough that was pathological testing, which has got a major breakthrough, and prevention of the death and life expectancy increases, because before that it was very difficult to diagnose what the disease is. Then 25 to 50, next 25 years, another major breakthrough was surgery, excellencies in surgery, because by pathology you can detect the disease, but if something is there, are you able to cut it down and take it out of the body? Then the surgery, another major breakthrough, life expectancy increase. Then 50 to 75, next 25 years, antibiotics. So there was a prevention mechanism came that if there is a disease or infection is likely to increase, it can be stopped. Then 75 to 2000, genetics. Now, in 2000 to 2025, in recent episode of COVID, you have seen the genome sequencing and understanding the virus and how this genome sequencing can affect. And it is now, science has come to the status that by umbilical cord and a DNA analysis of the umbilical cord, it can be told that which type of disease you are likely to have in your life. Even around what age you are likely to have which type of disease. अब अगर आप बात देखें, ये सिर्फ 50-60 साल पहले तो ये बात बकवास मानी जाती थी ना, कि जन्म के समय कैसे बता दोगे भाई कि कौन कौन सी बीमारी होनी है. Now, the arrangement of the atoms in the molecular structure of your umbilical cord is capable of giving the indication which type of diseases can be there. But you consider yourself separate from the nature, and we consider yat pinde tad brahmande. जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है. So the same thing, same inference can be drawn by looking at the various positions of the planet at the time of the birth. Because if somebody says there is no connection, so I would like to ask, if in nucleus the electrons are revolving around the nucleus in the same manner the planets are revolving around the sun, तो ये दिख रहा है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे. तो जो हमारे यहां का कनेक्शन था, अब अगर आप इस कनेक्शन को समझेंगे तो मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों के बीच का जो सेतु है वो आपको समझ में आने लगेगा. दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस हमारे. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा साहब बड़ा अचीवमेंट कर लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा. अब जो नई चीजें आ रही हैं वो क्या है कि ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म, नैनो मेडिसिन. वैसे इंटरेस्टिंगली शायद आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये नैनो मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया कहां से. विच इनिशिएटेड मिशन ऑन मार्स. बिकॉज व्हाट हैपेंड, to going in the moon and coming back, it takes 1 week or 2 weeks, it can be done. For 2 weeks, a person can be protected from disease in space. But if you want to go to Mars, it will take 1 year.
and coming back another 1 year. So, how you will ensure that a person will not fall ill for 2 years and staying in the space for 2 years may not create several type of diseases. So the research started, there can be so medicines which can be injected in the blood or other so that it can have an auto repair system in the body. तो साहब अब तो बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी होगी, तो कोई कह रहे हैं कि साहब अब तो जैसे लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो अब अम्बिलिकल कॉर्ड के डीएनए से पूरी आपकी किडनी बना दी जाएगी और ये रिजेक्ट भी नहीं होगी बिकॉज इट इज़ नॉट एन आउटसाइडर एलिमेंट इन द बॉडी. बट कभी आपने देखा कि इन्हीं 125 साल में भगवान ने हमसे क्या करवाया? 1900 to 1925 मशीन गन्स एंड फाइटर प्लेन्स केम. उससे पहले हजारों लोगों को एक दिन में मारना पॉसिबल नहीं था. 19 जिधर पैथोलॉजी आई तो ये आया. 1925 to 50 सर्जरी आई तो एटम बम केम. लाखों को मारना पॉसिबल नहीं था उससे पहले. 50 to 75 एंटीबायोटिक्स केम, द मिसाइल टेक्नोलॉजी केम. एक बटन दबाइए 1 दर्जन शहर तबाह. देन 75 to 2000 जेनेटिक्स केम and then came the bio weapons, जिसका कि एक मतलब there is a one theory in the corona virus case that can be a bio weapon. So एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को कहाँ से कहाँ ला सकता है. तो आप ये समझिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई. बट इफ यू लुक एट द कंप्लीट यूनिवर्स, तो भगवान आपको बता रहे हैं कि जितना इतरा रहे हो तुम 100-125 साल में डेवलपमेंट करके, उतनी हमने तुम्हारे हाथ से व्यवस्था कर दी है कि 100-125 घंटे में वो नलीफाई हो सकता है. क्यों? बिकॉज इफ यू लुक, देयर इज ए साइंटिस्ट, फिलोसफर, और जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो लेबनीज थ्योरम जरूर पढ़ी होगी. बीएससी में हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ी थी. लेबनीज वाज ए जर्मन फिलोसफर विच सेज दैट द एंटायर यूनिवर्स इज इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नॉट ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस सर्किल का एक सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट आप एक डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना घूम जाता है. सो एवरीथिंग रिमेन्स इक्विलिब्रियम इन दिस यूनिवर्स. इफ यू अचीव इन वन डायरेक्शन, यू आर लिविंग इन अदर डायरेक्शन, लूजिंग समथिंग इन द अदर डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई जब हमारी थिंकिंग थी तो वो क्या थी? अंदर से लेके बाहर तक. जो मैंने यत पिंडे तद ब्रह्मांडे कहा, तो वो अंदर से लेके बाहर तक की थिंकिंग थी. और वो बाहर तक आप पहुंचेंगे कैसे? अब now I come to the point of meditation. There are two things, as I have already spoken 2-3 times this thing. Today we are having this mobile phone. And if you want to read something which is published anywhere in the world, for example, you want to read the Washington Post. So there are two ways. You take a flight from Delhi to Washington. It will take 16 hours to 20 hours depending upon your flight. By the time one day would have passed, अब आज का अखबार कल पढ़िए जाके. और दूसरा है अपने मोबाइल में वॉशिंगटन पोस्ट डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए. बिकॉज द मोबाइल इज अ हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर, इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ सॉफ्टवेयर एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क. एंड द एंटायर नॉलेज इज देयर इन द नेटवर्क. यू जस्ट कनेक्ट विद द नेटवर्क with the help of your software. The entire knowledge will download in your hardware. In the same manner, just 50-60 years back, ये कहा जाता था कि इंडिया में, भारतीयों में, हिंदुओं में, बौद्धों में, ये क्या बकवास की बात कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना तो जा गुफा में ध्यान लगाओ. ऐसे कहीं हो सकता है? हाउ इलॉजिकल यू आर, हाउ अनसाइंटिफिक यू आर. आज आपका मोबाइल आपको बता रहा है. इन द सेम मैनर आप ये समझिए, आवर बॉडी इज अ हार्डवेयर, our consciousness, मन बुद्धि चित्त अहंकार is a software and there is a connecting network. Even 40 years back, आप दुनिया की जितनी भी किताबें हैं वो मोबाइल पे ले सकते हैं. तो लोग कहते हैं कितनी जीबी की मेमोरी हो सकती है? इम्पॉसिबल. अगर इतना बड़े कमरा भी रख दिया जाए तो इतनी मेमोरी नहीं हो सकती किसी मशीन की कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स. यू नो टुडे इन यूट्यूब देयर आर 800 मिलियन वीडियोज. 800 million videos are available on plus 800 million plus are available on YouTube. केवल 40 years back आप कहते हैं कि साहब इतने बड़े कमरे के बराबर की भी मेमोरी डिस्क लगा दी जाए तो 800 million वीडियोस नहीं आ सकते. टुडे दे आर नॉट इन द डिस्क, दे आर इन द नेटवर्क. सो इन द सेम मैनर देयर आर सेवरल थिंग्स इन द नेटवर्क. वी हैव टू कनेक्ट टू दैट. तो अब उसके लिए क्या कहा जाता है कि अंदर उतरो.
There are faculties you have to connect your software with the network. और कनेक्शन नेटवर्क का कैसे होगा? You have to do some programming in your software, not in the network. नेटवर्क में तो जो है ही है. You have to program in your software, like if you want to connect to Wi-Fi, तो Wi-Fi का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ना. तो यही कहा गया है कि आप अपने अंदर की कॉन्शियसनेस का जैसे ही मॉडिफिकेशन करते हैं, ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स कनेक्टिंग टू द आउटर वर्ल्ड, एंड देन हाउ पीस ऑफ माइंड एंड स्ट्रेस कम्स. इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है विद ए स्मॉल साइज एंड स्मॉल वेट, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो वो जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है. वही धरती के ऊपर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द मैग्नीट्यूड एंड ग्रेविटी बिकम्स ह्यूज. इन द सेम मैनर, टिल योर कॉन्शियसनेस इज confined to your body, you are more susceptible to be outside pressures. The moment it starts increasing and the sphere starts increasing, your effect of sustaining any stress or negative thought becomes more. दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए. केवल आपके शरीर में दर्द होता, आपको ज्यादा तकलीफ होती है, उसी समय आपके बच्चे के तकलीफ हो जाए, आप अपनी तकलीफ भूल जाते हैं. Because your consciousness has pervaded your life, your body and connected to someone else. अब आप सोचिए कि अगर आप इस कॉन्शियसनेस को पूरी सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर दें, तो अब क्या होता है कि जो आप नीचे उतरते हैं तो आपका कनेक्शन ऊपर भी होता चला जाता है. By default, your sustenance capacity becomes strong. And the entire objective of meditation is to search for that ultimate energy in yourself. And that ultimate energy is already embedded in yourself. You are unaware of that. Like you are having a device, you have not just connected to network, otherwise everything is there. तो क्या होता है कि जब आप कनेक्ट करते हैं तो हमारे यहां सारा सिस्टम क्या माना गया है? Entire journey is inside, not outside. Even आप ये देखिए कि जो विचारधारा बाहर से आई है, इस्लाम बाहर से आया, उसमें भी थॉट क्या आ गया? एक उर्दू का शेर है कि हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं. मकसूद मतलब कहते हैं ना, मकसद वर्ड आप जानते हैं ना. मकसद मीन्स व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, मकसूद मीन्स डेस्टिनेशन. आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन. हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं. खुद अपनी राह खोजने हम जलवागर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं. महदूद मीन्स वेरी फ्यू. So what is our main objective is to search for yourself. और जब आप सर्च करते हैं तो finally what happens, you remove the outside elements and you finally reach to the purest level of your consciousness. और जब आप वहां पहुंचते हैं तो you feel the zero. और आप में से जिन लोगों ने सुना होगा कि जब मेडिटेशन की एक स्टेज होती है जिसमें कहते हैं कि आपको बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, अनहद नाद सुनाई पड़ता है, जो कहा जाता है कि हार्ट के अंदर होता है, जिसे कहते हैं अनहद. तो इसके लिए एक दोहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम. तो जब आप शून्य में अंदर पहुंचते हैं, अब शून्य से होता क्या है? दैट जीरो कनेक्ट्स यू टू द इन्फिनाइट. दैट्स वाई इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो you divide anything by zero, the resultant is infinite. And this infinity is attained irrespective of the value of the numerator. Whether you 1 divide by 0 or 1 billion divide by 0, it's always infinite. So that's why equality is also there. और इसीलिए अगर आप सबने ध्यान दिया हो, हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस श्लोक है, हम सब ने सुना है, उसका अर्थ किसी ने ध्यान नहीं दिया. गुरु और शिष्य के संबंध के बीच में है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. इसका अर्थ हुआ ओम पूर्णमिदं, यह पूर्ण है, पूर्णमदः मैं भी पूर्ण हूं, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण को निकालना है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, मैंने पूर्ण में से पूर्ण को निकाला. आई हैव टुक इन्फिनिटी आउट ऑफ द इन्फिनिटी, द रेजिडुअल इज इन्फिनिटी. इसीलिए देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन अवर कॉन्सेप्ट. Because education and meditation, how it connects.
Education is a Western concept which says that you can be considered educated if there are certain things implanted or information implanted in your mind. वो चीज irrelevant होने वाली है अगले 25-30 साल में. अभी तो गूगल ने आधा irrelevant कर दिया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कर देगी, और जब 5G और 6G आ जाएगा तो इंफॉर्मेशन होना कोई बड़ी बात नहीं, आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी डिवाइस में है और आपसे ज़्यादा एक्यूरेटली वो उसको प्रेजेंट कर सकता है. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो हमारे यहाँ एजुकेशन क्या मानी गई है? आप में से बहुत से लोगों को शायद ना पता हो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड शिष्य. शिष्य इज एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड शेष विच इज इन संस्कृत, हिंदी एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज. शेष मीन्स रेजिडुअल, इतना निकाल लिया तो इतना शेष बचा. शेष का एडजेक्टिव है शिष्य. इट मीन्स द फंडामेंटल ऑफ ड्यूटी ऑफ गुरु इज नॉट टू इम्पार्ट नॉलेज. नॉलेज इज ऑलरेडी देयर इन द नेटवर्क. Knowledge is already there inside your disciple. You have to just remove the cover of Maya. तो आपने जो अंधकार हटा दिया, जो शेष बचा वो शिष्य था. इसीलिए गुरु की डेफिनेशन क्या है? गु शब्दस्तु अंधकारस्यात् रु शब्दस्तन निवर्तिका अंधकार निवर्तित्वात् गुरुरित्य विधीयते. गु शब्द का अर्थ अंधकार, रु का अर्थ उसको नष्ट करना. जैसे ही आपने डार्कनेस हटाई उसका इन्फिनिटी अपने आप उभर के सामने आ गया. जो शेष बचा वो शिष्य था. ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा का ये मतलब था. और इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि साहब हमारे यहां तो बाई बर्थ और ये और वो सारी चीजें थी, तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, भगवान राम के बेटे थे लवकुश. कितने लोगों ने लवकुश का मंदिर देखा है? भगवान राम के भक्त और शिष्य हनुमान के मंदिर सब तरह होते हैं. द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, उसका स्थान ऊंचा है. द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है. आज भी जब पूजा करवाने आप घर पे जाते हैं तो पंडित जी हाथ में जल लेकर जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? अपना नाम लीजिए. व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? अपने बाप का नाम लीजिए नहीं, अपने गोत्र का नाम लीजिए. It means the spiritual succession is important, biological succession is not important. That's why in all the Indian tradition and the Hindu tradition, whether you want to become Mathadhish, whether you want to become Mahamandaleshwar, whether you want to become Shankaracharya, whether you want to become saint, it is incumbent that you have to remain unmarried so that there should not be scope of any biological succession. Even you cannot think of having any biological successor. There has to be spiritual succession. इसीलिए इवन आप ये भी देखिए, दलाई लामा होते हैं तो क्या कहते हैं? बता देते हैं ना कि अब वो फला जगह दलाई लामा, अगला वाला दलाई लामा पैदा हो गया. और मुझे खुद भी इस विषय की जानकारी नहीं थी. एक बार किरण रिजिजू जी ने मुझे बताया. किरण रिजिजू जी जो मिनिस्टर हैं, ही इज बुद्धिस्ट. तो ही टोल्ड मी कि ऐसे ही नहीं कि किसी दलाई लामा ने डेथ से पहले कह दिया कि अगला दलाई लामा वहां पे होगा जाके तो हमने मान लिया. ऐसा नहीं होता है. उनका यह कहना है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा की जाती हैं. लाइक द पेन, तो जो पेन वो यूज करते थे वो पेन रखा जाता है और सिमिलर टाइप के 5-6 पेन रखे जाते हैं. जो बुक्स हैं, जो बुक वो यूज करते थे सिमिलर बुक्स रख दी जाती हैं. ऐसे बहुत सी चीजें यूज करते थे. अब जब वो बच्चा सक्सेसिवली 5 और 6 थिंग्स उन बुक्स में से, उस पेन में से, उन यूज किए हुए एलिमेंट में से वही पिकअप कर लेता है, देन दे फाइनली कन्फर कि हाँ ये वो है जिसके लिए कहा गया था. तो आप ये समझिए, ये मैंने इसलिए भी कहा, ठीक है कोई उसको माने ना माने, इट्स ए डिफरेंट थिंग, बट ये भी एक, मैंने क्यों कहा कि जब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है. जो मैंने एक बात कही थी कि साइंटिफिक डॉगमा ये है कि एवरीथिंग देयर इन द यूनिवर्स इज रैंडम, देयर इज नो डिजाइन. डिजाइन की बात क्यों ना करते हैं? डिजाइन मान लेंगे तो डिजाइनर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इसलिए रैंडम की बात करो. जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है, जैसे जैसे नॉलेज का बेस बढ़ता जाता है, जिस चीज को हम रैंडम मानते थे उसमें डिजाइन दिखने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, आज से केवल 60-70 साल पहले, इट इज रेनी सीजन गोइंग ऑन, कल पानी बरसेगा या नहीं, इट वॉज अ रैंडम थिंग. नाउ टुडे बाई सैटेलाइट पिक्चर्स इवन यू कैन प्रिडिक्ट आफ्टर 10 days और 15 days यहां पानी गिरेगा. आज से 50-100 साल पहले 15 दिन बाद पानी गिरेगा, इट वॉज रैंडम. वैसे तो ये भी एक बात कहता हूं, ये भी एक, दो इट इज इलीगल बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, भाई लड़का है या लड़की, इट वॉज रैंडम. नाउ इट कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन बिफोर बर्थ. आप ये समझिए कि जो जो नॉलेज का स्फीयर होता जाता है, ये रैंडमनेस का एलिमेंट हटता है. आप दूसरी एक बात कहें, those who don't believe in the law of nature, there is no balancing fact in the nature. So I would like to ask, in statistics we were told कि एक बार उछालिए सिक्का तो हेड आएगा या टेल? तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है.
4 बार में 4 बार हेड भी आ सकता है, बट अगर 4,000 या 40,000 बार आप करेंगे तो 50-50 हो जाएगा लगभग। इट मीन्स जो जो आप वास्ट एक्सपेंस ऑफ नेचर पे जाते हैं, देयर इज अ बैलेंसिंग फैक्ट फोर्स, देयर हैज टू बी अ बैलेंसिंग फोर्स, वरना 40,000 में 40,000 बार भी हेड आना चाहिए। इफ यू से कि 40,000 में करने में रफली 20,000 बार आएगा, इट मीन्स देयर इज अ बैलेंसिंग फोर्स एट द लार्जर लेवल विच बैलेंसेस योर एंटायर थिंकिंग प्रोसेस और एंटायर एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। और इसमें एक मैं बात और कहूंगा जिसको बहुत से लोगों को लगता है कि चूंकि मैंने कहा कि साइंटिफिक एडवांसमेंट में फाइनली अब आ गए जेनेटिक्स के ऊपर, तो अभी तक जो डीएनए बना है तो मनचाहा डीएनए नहीं बनाया जा सका है, डीएनए की कॉपी की जा सकी है। तो स्टिल टुडे वी आर द लेवल ऑफ क्लोनिंग, वी आर नॉट एबल टू हैव द डीएनए विच वी वांट ऑफ आवर चॉइस। तब तो फिर पंखों वाला इंसान भी बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हो पाया है, उसके पीछे एक रीजन माना जाता है कि जो जेनेटिक कोड होता है या जो अमीनो एसिड्स के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पैटर्न में, तो जब मदर और फादर के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो जो फोर्स उसको पहले डीअरेंज करता है, फिर जो उसको रीअरेंज करता है, दैट फोर्स, अभी जो 4 बेसिक फोर्सेस नोन है यूनिवर्स में, उन चारों में से कोई नहीं पाया गया है। मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, वीक मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस फोर्स? अब इस पे एक साइंटिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रिक, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक नई थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि दिस इज अ 5th टाइप ऑफ फोर्स विच ही हैज गिवन द मॉर्फोजेनेसिस फोर्स, मॉर्फिक फोर्स, which is there in our consciousness, which can be transmitted through our mind or consciousness, which can be enhanced through only consciousness, which can be retained only in consciousness. फिर एक प्रोफेसर लॉयल वॉटसन है, उन्होंने एक और थ्योरी दी है कि जैसे जब मैक्सवेल ने मैग्नेटिक करंट की थ्योरी नहीं दी थी, तब तक किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इन्वेलप होता है। तो उनका कहना है कि जो हमारे डीएनए के पैटर्न है, मैंने उनकी बात सुनी तो बड़ी लॉजिकल लगी। उन्होंने कहा वो जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बेस नहीं है, उसके चारों तरफ एक बेंटल वेव्स का एनवेलप है, वो मिलाकर उसको तय करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बात कही कि हम इस हॉल में हैं, तो जो कंक्रीट बेस पे है, द कंक्रीट ऑन द वॉल एंड द कंक्रीट ऑन द फ्लोर, ऑल कंक्रीट्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देन व्हाई दिस पार्ट ऑफ कंक्रीट इज ऑन द फ्लोर एंड दैट इज ऑन द वॉल? उसका रीजन यह है कि जिस फोर्स ने यह डिसाइड किया है वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बियॉन्ड का फोर्स है। अब उन्होंने इसी का एग्जाम्पल दिया कि इफ यू वांट टू हैव ए डीएनए टेस्ट, तो क्या कहते हैं, नाखून, बाल, खाल, शरीर का कोई लिक्विड और आपका डीएनए मैच हो जाएगा। इफ इट इज एवरी एलिमेंट ऑफ योर बॉडी इज हैविंग सेम डीएनए, फिर किस वजह से ये बाल बना और ये खाल बना? सो द डिसाइडिंग फोर्स ही हैज टर्म्ड इट एज मॉर्फोजेनेसिस फोर्स। अब उन्होंने ये बात कही तो वहां से उन्होंने बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आए कि भाई यूनिवर्स में भी एक कॉन्शियसनेस है, और आप कोई चीज पहली बार करते हैं जैसे, तो आपको कंफ्यूजन रहता है, 3rd, 4th, 5th टाइम के बाद आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं और वो आपके थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही हैज टोल्ड, he told कि when I discussed this thing to scientists in America and England, they said you are doing a foolish thing. What is the sense of finding this thing that the universe is having some conscious memory and all our acts are settled in that, and then they decide how the universe will work? Then he said he came to Hyderabad at one point of time and he discussed with DRDO scientists. Then they said you are doing a foolish thing, बट ऑन ए टोटली कंट्रेरी लॉजिक। उन्होंने कहा फुलिश इसलिए है कि ये तो हमारे यहाँ हजारों सालों से बताया गया कि हमारे कर्म जो हैं वो नियत रहते हैं, वो कभी समाप्त थोड़ी होते हैं, वो तो तय हो जाते हैं, वही प्रकृति में रहते हैं, उसी कर्मों के अनुसार हमको आगे का जीवन जीना पड़ता है। अब उसने कहा कि दुनिया के 2 छोरों में खड़े होकर मुझे एक ही सेंटेंस सुनने को मिला और दोनों का लॉजिक कितना डिफरेंट था, ये सोच के मैं अचंभित हूं। अब यहां से आइए कि इफ दिस इज नॉट ए कॉन्शियस यूनिवर्स, इफ देयर इज अ नो कंट्रोलिंग फोर्स, तो फिर वो 40,000 में 20,000 कौन बैलेंस कर रहा है?
एक और बात आप सोचिए कि अब जैसे आचार्य जी येलो कलर की ये पहने हुए हैं, आपको भी येलो दिख रहा, हमको भी येलो दिख रहा है। अगर हम सब रैंडम हैं और टोटली अलग हैं तो आपको ग्रीन और हमको येलो दिखना चाहिए। हु इज डिसाइडिंग दैट एवरीबडी शुड लुक इट एज येलो? देयर हैज टू बी अ कलेक्टिव विजडम ऑल्सो, जिसे वेदों में कहा गया महत। एक सत है, एक महत है, एक हमारी बुद्धि है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उस रियाल्म्स में जाते हैं जो आपको उस लेवल पे कनेक्ट कर देता है जहां इमेंस पावर मिलती है, जहां इमेंस नॉलेज मिलती है। और वो कैसे मिलती है, ये मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देना चाहता हूं। और हमारी नॉलेज हम भूले हुए होते हैं, वो सारी नॉलेज हमारे अंदर है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं रहती है। जैसे आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब आपके माइंड के अंदर जाके सेटल होता रहता है, बस रिट्रीविंग का ही तो प्रॉब्लम है। जो पढ़ते थे ना कि विवेकानंद ने एक बार देखा और उनको कोई चीज याद हो गई, बुक को पढ़ा तो जो लैंग्वेज उन्हें नहीं भी आती थी उसको भी रिप्रोड्यूस कर दिया। या जैसे आपने सुना होगा इवन टुडे शतावधानी मुनि, अभी बेंगलुरु में 4-5 साल पहले एक जैन सेंट लड़का था यंग एज का। शतावधानी मीन्स 100 पीपुल आर सिटिंग and all 100 have asked one question, and after completing the 100 person he will reply in the same sequence the answer of all the 100 person. These are called shatavadhani, यानी 100। ऐसे ही सहस्रावधानी भी होते थे, 1000 पीपुल का भी वो क्वेश्चन का आंसर उसी सीक्वेंस में देंगे। दिस जस्ट शोज कि व्हाट द लेवल ऑफ माइंड और आवर फैकल्टीज एंड कॉन्शियस फैकल्टीज वी आर हैविंग। तो इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, तो मेडिकेशन एक बेस बनाता है, मेडिटेशन एक लॉन्चिंग पैड है जो हमें वहां तक ले जाता है जहां जाने के बाद ये जो आपका फिजिकल वर्ल्ड के भी बियॉन्ड चले जाते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा था, आप कहेंगे ठीक है सब बातें कह दी थ्योरेटिकल हैं, ऐसा होगा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ वी विल बी एबल टू अचीव? अब मैं इसका आपको बिल्कुल एक टेक्निकल आंसर देता हूं जो बिल्कुल साइंटिफिक एस्पेक्ट पे होगा। आप हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं या घड़ी लिए हुए हैं, अचानक आपके हाथ से मोबाइल छूट के गिर जाए जमीन पे, तो जैसे ही ठक से मोबाइल होगा वैसे ही आपके दिल में धक होगा और बाकी यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स देयर इज ए एक्शन ऑन वन ऑब्जेक्ट, means or your mobile or your watch, and reaction in your mind. So strictly speaking in scientific terms, the third law of Newton says there can be an action and reaction on two objects only if they are having a one connection. इसका मतलब आपके मोबाइल या आपकी वॉच का आपके माइंड के साथ एक कनेक्शन बन गया है, और अगर कनेक्शन बन गया है तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये कहता है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिएबल एनर्जी लेवल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो किसका एनर्जी लेवल हाई है? आपके ब्रेन का या आपकी वॉच का? आपके ब्रेन का। तो जैसे ही आपने कहा मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरी कार, मेरा मकान, मेरा ये, से आपने कहा कि व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। यही तो होता है, व्हेन यू आर हैप्पी यू फील एनर्जाइज्ड, एंड योर एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड हैज गॉट इंटैंगल्ड विद एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मुझे ये खाना अच्छा लगता, मुझे पहनना अच्छा लगता, मुझे घूमना अच्छा लगता है, ये मोबाइल मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये मूवी देखने को मिल जाए, वगैरह वगैरह, से 20 ऑब्जेक्ट्स। तो योर एनर्जी ऑफ माइंड इज इंटैंगल्ड इन 20 ऑब्जेक्ट्स। अब आप इसको कम करना शुरू करिए, 20 से 15 पे ले आइए, तो x/15 इज इक्वल टू वैल्यू x 20 से ज़्यादा हो गई, नेट वैल्यू बढ़ गई। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके अंदर वो एनर्जी रह गई। 15 से 10 पे आ गए और एनर्जी बढ़ गई, 10 से 5 पे आ गए और एनर्जी बढ़ गई। अब 5 से आगे की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। ये 5 चीज़ें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, एग्जिस्टेंस। तो अब आगे की यात्रा साधु करते हैं, पहले आवास छोड़ दिया तो x/4 हो गया। अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है मकान की, जैसे नागा सन्यासी रहते हैं, तरुतल भिक्षा करतल व्यास, मतलब तरुतल वास, करतल भिक्षा तरुतल वास। देन वो क्या करते हैं? वस्त्र छोड़ देते हैं, जैसे जैनों में दिगंबर और नागा साधु। अब दिशाएं ही मेरा अंबर है, नाउ कॉन्शियसनेस हैज रीच टू दैट लेवल, x/3 हो गया। अब फूड, अब वो उस लेवल में कॉन्शियसनेस पहुंचती है जहां पर कि आपको किसी वर्ल्डली मटेरियल से एनर्जी नहीं लेनी है, आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ फूड, तो x/2 हो गया। अब 2 चीजें बची, श्वास और योर एग्जिस्टेंस। अब जब तक आपकी ब्रीदिंग चल रही है देन यू आर अलाइव, इफ द ब्रीदिंग स्टॉप्स यू आर डेड। तो योर एग्जिस्टेंस इज बाउंड बाय द ब्रीदिंग,
बट द मोमेंट यू आर एबल टू मेक योर एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रीदिंग, जब मैं चाहूंगा तो सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, तो x/1 हो गया। x/1 इज इक्वल टू x, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया। यही समाधि की अवस्था है जो योग के उच्च पे जाती है। बट अभी एक चीज रह गई, मी, माई सेल्फ, वन पर्सन, माई नेम, माई आइडेंटिटी। द मोमेंट योर consciousness becomes independent of your identity and existence, the value of n becomes 0, x/0 is equal to infinity। अब सारी अनंत ऊर्जा आपके अंदर आ गई। और आप यूं लास्ट में समझ लीजिए, ये मेडिटेशन आपको कहां पे ले जाता है। यू आर ए पर्सन, देन आपकी स्थिति यह है कि यू आर लाइक ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज योर बॉडी एंड योर सेंसेस विद अ सेंटर इन यू। जब आप मेडिटेशन के ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं, आत्मा के लेवल पे, तो इट इज अ सर्किल ऑफ हैविंग इनफाइनाइट सर्कमफ्रेंस विद अ सेंटर इन यू। बट लॉजिकली मैथमेटिक्स अगर पढ़ा हो तो इनफाइनाइट रेडियस का जो सर्किल होगा उसका सेंटर फाइनाइट हो सकता है क्या? नहीं। इनफाइनाइट रेडियस के सर्किल का सेंटर एवरीवेयर होना चाहिए। तो द मोमेंट आप ये रियलाइज करेंगे तो आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे, और फिर आप कहेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। देन यू विल बी एबल टू रियलाइज एंड यू विल बी एबल टू से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक एस्पेक्ट है। और मैं फाइनली एंड करते हुए ये कहना चाहूंगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को क्या कहा कि 25 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं। ये आने वाले 25 वर्ष अमृत काल है भारत का, जिसमें 75 ईयर्स से लेके हम 100th ईयर कंप्लीट करेंगे। और पिछले 15 अगस्त को जब ये अमृत काल शुरू हुआ तो उन्होंने 5 संकल्प दिए थे और कहा था उसमें क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1, इंडिया को 2047 तक नंबर 1 की इकोनॉमी और डेवलप्ड कंट्री बनाना है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, उसके लिए सबको कर्तव्य करना और कर्तव्य सामूहिक करना है। तो अगर आप देखें तो अगले 25, अब इस बार उन्होंने क्या कहा, वो 25 साल का बेस जो बनेगा वो 1000 साल तक भारत का बेस बनाएगा। 1000 ईयर वो बेस कैसे बनेगा? फाइनली ये समझ लीजिए, मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया, हमारा राइज तो अब कोई रोक नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है, द टाइम ऑफ इंडिया हैज अराइव्ड। और इसको मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड भी कर देता हूं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। आज से 2500 साल पहले इंडिया वॉज द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वी वर द इकोनॉमिक सेंटर, वी वर द इंटेलेक्चुअल सेंटर, वी वर द मिलिट्री सेंटर। हमारा डाउनफॉल हुआ 2005 ईयर्स बैक। जब इंडिया का डाउनफॉल हुआ, देन हु इमर्ज एज द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, आज का ईरान। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, देन हु इमर्ज एज द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। देन व्हेन द मेसोपोटामियन एम्पायर has seen a downfall, then who emerged? The Turkish Empire. Look at the pattern of shifting. Turkish Empire का डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर। बहुत लोगों ने शायद अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, यूरोपियन हिस्ट्री, तो पहले रोमन एम्पायर की 2 कैपिटल थी। एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की का इस्तांबुल है, एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो आज का रोम है। When Roman Empire declined, the time of Portugal, Spain came. When the Portugal, Spain declined, the time of Britain and France came. And when the British Empire eclipsed, the time of America came. अमेरिका में आप देखें, द मोस्ट प्रॉस्परस इज द वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। नाउ कम 70-80 years back. Then came the time of Japan. Then come in the last 50-60 years, the time came when the tiny countries were dominating the world economy, which were considered the tigers of the Asia Pacific: Hong Kong, Taiwan, Singapore, Macau. Now come in the last 20 years, China. अब चाइना में तो डिफ्लेशन शुरू हो गया है, आपको जानकारी होगी, बहुत सारी चीजें। व्हाट नेक्स्ट? इंडिया। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, बट द फंडामेंटल थिंग इज G7 और G20 में आपने एक बात देखी होगी, जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स थे, सिर्फ हमारे मोदी जी ऐसे थे जो सूट कोट और टाई में नहीं थे। हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जाती थी, चाहे सुषमा स्वराज जी हो या अभी निर्मला सीतारमन जी जाती हैं, तो साड़ी में थी। It means we are not just the biggest nation, we have surpassed China.
it symbolizes that we symbolize the oldest civilization also. So we are the youngest nation, we are the oldest nation, we are the biggest nation. Now the target is to become richest nation, but for what? Not to dominate the world. ये बाकियों को चाहिए होगा dominate करना है, but to motivate the world, to inspire the world. The beginning was from your topic, as I have said, yoga, then comes meditation, then comes pranic healing, then comes supreme realization. That's why we want to become Jagat Guru, not the world superpower. Because power dominates and Guru motivates. जब आप किसी पावरफुल व्यक्ति के पास खड़े होते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा छिचका हुआ, संकोच, समथिंग ऑफुल, समथिंग अलर्ट, कॉन्शियस कि बुरा ना मान जाए. जब गुरु के पास में खड़े हो तो यू फील एक्साल्टेड, इलेटेड एंड फुल ऑफ इंस्पिरेशंस. सो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि अगर जहां से मैंने शुरू किया था वहीं खत्म कर रहा हूं कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज कमिंग टुगेदर फॉर मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, तो आप समझ लीजिए द लार्जर कोहेरेंस हैज इमर्ज. और जो हमारी प्राचीन ज्ञान है, जो हमारा प्राचीन नॉलेज है, वो पूरी दुनिया को एक नया डायरेक्शन देगा. जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक कविता थी, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा. वो हम डिसाइड बताएंगे दुनिया को. एंड फाइनली समबडी शुड नॉट टेक इट अदरवाइज. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी प्रख्यात कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय. उसकी एक जो लाइन है वो बताती है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं. उन्होंने कहा, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय. थैंक यू.